माय एमिरेट्स इस साल डीपी वर्ल्ड आयल T20 में धूम मचा रही है। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की बदौलत अंक तालिका में है सबसे ऊपर और प्लेऑफ्स में जगह कर चुकी है पक्की। आज शाम T20 के एक और सुपर हीरो कायरन पोलार्ड माय एमिरेट्स की नीली पोशाक में मैदान में उतरेंगे। इससे टीम के चैंपियनशिप जीतने के इरादे होंगे और बुलंद। It's about doing your role as an individual. Obviously, as a cricketer, I still have a role to play in all three departments of the game, and that's what I have all intentions to do. दूसरी ओर गल्फ जायंट्स पिछले सीजन के विजेता रहे हैं। वो आसानी से ये ताज अपने सर से जाने नहीं देंगे। लगातार 2 मैचेस जीतने के बाद वो प्लेऑफ्स में अपना स्थान लगभग पक्का कर चुके हैं। इस सफलता का राज है टीम की अच्छी बॉलिंग और शिमरॉन हेटमायर के फॉर्म में वापसी। क्या जायंट्स ये जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे या माय एमिरेट्स आज उनके प्लेऑफ्स के सपनों को देंगे एक झटका? हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह है डीबी वर्ल्ड आयल T20 का मैच नंबर 26, जहां पे भिड़ेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स शिखर पे बैठे हुए माय एमिरेट्स के साथ। माय एमिरेट्स 12 पॉइंट्स और नेट रन रेट देखिए 2.06 और नंबर 3 पर है गल्फ जायंट्स। आपको बता दें निकोलस पुरन आज है नहीं, नए कप्तान है। दोनों कप्तान रेडी है साइमन डूल के साथ। चलते हैं सीधा टॉस की ओर। Match 26 here at the Dubai International Stadium tonight. Mr. Kunal Shah is our toss representative. Roshan Mahanama is here as well. Karen Pollard is welcome to the DP World IL T20. And James Vince, you have the coin. Tails. Tails is the call. It is tails. That's a good start, Kyron. What are you going to do? We're going to bowl first. Nice to be here. Have you been keeping an eye on things from down in South Africa? Yeah, of course. I've been watching the guys. They've been doing pretty well. You know, obviously, the start they have gotten in the first 8 games and the way they have played, you know, the cricket matches, you know, has been phenomenal to watch, you know, from television. A few changes. I know 4 boys have left. Can you name all the guys coming in? What have you done with the side? Yeah, obviously the skipper, he's gone. These guys have gone on international sort of duties. So obviously, I come in for Tim David. Dan Mosley comes in for the skipper. VJ, the leg spinner, he comes in for Akil Hussain, and Jordan Thompson, he comes in for Faruqi. All right, what have you seen of the tournament? What have you seen of the surface that you like? Obviously, the balls have been swinging around, have been moving around for a long period of time, just like the T10 in November. And get the opportunity to bowl first, obviously try to restrict them for as least as possible. But again, chasing has not been as easy as you would think as well. So obviously there's been a formula that has been working, you know, for the guys, and obviously it's a matter of just trying to fit in and hopefully, you know, continue that. All right, nice to see you here. Go well tonight. Thank you. Nothing changes, James. You've got to set a total again. How do you feel? Yeah, as you say, nothing changes. Kind of expect it. We would have bowled first had I eventually won a toss, but only because, you know, the chance of Dew coming in later. But as you say, last 2 games he batted first and managed to get the wins on the board, so try and replicate that this evening. 187 2 games ago, 126 last game, but you've won them both. What's been the key to those wins, and is it played that badly? No, I think last game the scores were under par. It certainly held a bit for the slower bowlers and the seamers taking the pace off, but yeah, I think the wicket warranted a few more runs. This one looks like it's got a fraction more grass on it, so hopefully it's a decent wicket this evening. What's the message to the lads? Same again, got to try and continue this momentum. Obviously, we're getting towards the business end of the tournament, playing a team tonight that have been playing really good cricket, despite some changes they've got in their side. They're hopefully a side we're going to come up against again soon. So, yeah, try and lay down the marker and get the points on the board tonight. And you've kept the faith with the same crew? Same team this evening. All right, go well, eh? Good luck. There you go. Karen Pollard has won the toss. My Emirates will bowl first. जी हाँ, माय एमिरेट्स ने यहाँ पे टॉस जीतकर गेंदबाजी का चयन किया है और आपको बता दें कि माय एमिरेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है वो नहीं होंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए गए हैं, लेकिन कायरन पोलार्ड इज बैक, जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डीपी वर्ल्ड आयल T20 में T20s खेलने का। देखिए, शो पर बहुत कुछ है बात करने के लिए। गल्फ जायंट्स जो कि है वो अनचेंज्ड है, लेकिन आपको पहले दिखा दें कि किन किन चीजों पर होनी चाहिए आपकी नजरें। दुबई का रिंग ऑफ फायर तैयार है T20 लेजेंड कायरन पोलार्ड का स्वैग से स्वागत करने के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स कैसे रोकेंगे माय एमिरेट्स को? और जायंट्स के सुपरस्टार शिमरॉन हेटमायर के साथ कुछ मजेदार बातें।
आइए शो की शुरुआत करें। ये है क्रिकेट सफारी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे शो पर रोहन गावस्कर हैं एंड द यूजुअल निखिल चोपड़ा। हेलो, गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग। सिंस यू आर डेब्यूइंग ऑन आवर शो, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, कायरन पोलार्ड जो है वो भी डेब्यू कर रहे हैं आज इस सीजन डीपी वर्ल्ड ILT20 में। जी देखिए, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कायरन पोलार्ड क्रिकेट टच में है। ये नहीं कि पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं कर रहे, पिछले 2-3 महीने से क्रिकेट खेल रहे, T20 लीग खेल रहे, T20 लीग से यहाँ आए तो टच में होंगे। और ये एक अच्छी बात है माय एमिरेट्स के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि जब और कप्तानी करें तो आप चाहते हो कि जब आपका कप्तान आए तो फॉर्म में है, क्रिकेट के टच में रहे। और देखिए, ये तो T20 क्रिकेट के लेजेंड है। अगर उनके आंकड़ों पर नज़र डालो तो 12,000 से ज़्यादा रन, तो जब आपके पास ऐसे नंबर हो, ऐसे आंकड़े हो, तो आप एक प्रूवन विनर को टीम में ला रहे हो, तो ये अच्छी बात ही हो सकती है। जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी चेंजेस है माय एमिरेट्स के स्क्वाड में, बिकॉज बहुत सारे खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए गए हैं। दूसरी तरफ है गल्फ जायंट्स और फॉर्म में है टीम। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है जब पोलार्ड जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में वापस आता है। मैं समझ सकता हूँ कि निकोलस पूरन नहीं है जो अच्छे फॉर्म में वो बल्लेबाजी कर रहे थे और जो मोमेंटम चाहिए, जिस रफ्तार से रन बना रहे थे, लेकिन अब आपके पास पोलार्ड भी आ गए जो जिम्मेदारी टीम डेविड निभा रहे थे। तो आपको पता है कि इतना अनुभव, जैसे भी रोहन भी बता रहे थे, 12,500 रन से ज़्यादा वो अनुभव जो है ना, वो जो उन्होंने साल भर काम करके कमाया, साथ में ब्रावो जैसा खिलाड़ी है। ये टीम लदी हुई है मैच विनर्स के साथ और अनुभव के साथ। किस सिचुएशन में आके किस तरीके से कौन से खिलाड़ी से क्या रोल अदा कराना है ना, ये बखूबी समझते हैं। तो कमाल की टीम है जी। एक ट्रिनिडाड टोर्नेडो गए तो दूसरे आ गए यहाँ पे हीरो ऑफ द। लेकिन गल्फ जायंट्स से इस बात से काफी कॉन्फिडेंस लेंगे कि उनके जो मेजर मैच विनर्स हैं वो नहीं है। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि आप मेजर मैच विनर्स के बारे में बात करो तो निकोलस पूरन जो है वापस चले गए। अकील हुसैन जो गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और हमने देखा है कि पावर प्ले में किफ़ायती रहते हैं और विकेट चटकाते हैं। और फिर टिम डेविड ने हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में ही लोअर डाउन द ऑर्डर वो फिनिशर का रोल जो निभाते हैं, जिस तरह से उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है, वो ज़्यादा लोग के पास नहीं है। तो 3 ऐसे खिलाड़ी गए हैं, फजल फारूकी जो मुझे अभी पता नहीं, लेकिन एक समय था कि विकेट टेकिंग चार्ट्स में नंबर 1 थे। जी विकेट टेकिंग चार्ट्स में नंबर 1 थे। तो देखिए, 4 ऐसे प्लेयर गए हैं जो इन टच और बेहतरीन फॉर्म में थे। तो इससे तो आप किसी को भी लाए टीम में, माय एमिरेट्स की टीम में थोड़ी तो कमजोरी आएगी जी। और यहाँ पे नए जो खिलाड़ी हैं वो एक सरप्राइज एलिमेंट भी बन के आ सकते हैं। ये भी एक टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकता है। देखिए, जी हाँ, जब आप अंतर्राष्ट्रीय लीग्स खेलते हैं, अगर किसी भी खिलाड़ी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो एक टीम उनके खिलाफ प्लान नहीं कर सकते। और यहाँ डीपी वर्ल्ड ILT20 में देखा है कि वो जो मंच मिला है, ये आपको एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है। कोई भी यंगस्टर आप कहें ना, उसको वो ग्रैब करने की वो कोशिश करता है, अपना नाम, अपनी पहचान बनाता है। जी हाँ, जिस तरीके से जुबैर ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की, वो कंधे से कंधा मिला के अयान के साथ वो प्रेशर बनाया। 126 जैसा टोटल रिदमा पिछले मुकाबले में डिफेंड किया इस मैदान में, काबिले तारीफ। जी देखिए, गल्फ जायंट्स एक ऐसी टीम है जहाँ पे इतने सारे स्टार नेम्स नहीं है, लेकिन जो UAE के लोकल खिलाड़ी उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल किया है एंड दे हैव मेड श्योर देयर प्रेजेंस इज फेल्ट। चलिए, हम तो बात करते रहेंगे इस मैच के बारे में, लेकिन यहाँ पे दोनों खेमों के 2 और 3 ऐसे एक्चुअली खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जो आपको दे रहे हैं एक मैच प्रीव्यू। There you go, another boundary. Brings up the 50 for captain Nicholas Pooran. They've been the benchmark for around the world, the MIE, MI family, to be honest. And you know what? I think we have an advantage over them is that the fact that they've had players leaving their squad, and we've had a nice settled squad here. So we've got our formulas and what we think will work for to get the win. Our blueprint hasn't changed too much over the course of the tournament, whereas theirs will. They're missing 3 big names. There's a little edge on that. A big celebration it is for Faruqi, who continues to pick up wickets. Obviously, it's about continuity. The guys have been doing well. It's just a matter of trying to fit in and do your bit as a player, as well. So for me, it's about doing my bit as a player, bringing my experience, to the fore, and hopefully, we can continue. This is the back end of the tournament, one of the most important parts of the tournament. So, this is the business end where you want all the ducks in a row, and guys understanding what is necessary and what is needed to be done in terms of a momentum perspective.
Once we do the right things, I think we should be able to cross the line. The last time that we played against them in Abu Dhabi was it was a close game. I think we were just like a hit or two hits away from actually crossing the line. So it's just for us to basically replicate the good things that we would have done in our past games, and even the stuff that we didn't do well, to just correct them. It's about doing your role as an individual. Obviously, as a cricketer, I still have a role to play in all three departments of the game, and that's what I have all intentions to do. It might work, it might not work, but at the end of the day, give yourself the best opportunity in terms of practice and process, for that to happen, and just to continue the good work. Oh, has he taken this? They're going to have fresh energy, but we've got momentum. And yes, they do as well, but this is why it's one of the greatest comps in the world. देखिए यहाँ पे जो खिलाड़ी उन्होंने बता दिया कि उनके खेमों के क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या कमजोरी है। चलिए आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक ट्रेंड रहा है जहाँ पे चेजिंग टीम्स को ज़्यादा सफलता मिली है, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में बैटिंग टीम जो है वो जीती है। किस तरीके की सतह बता रहे हैं विवेक राजदान एक खास गेस्ट के साथ। मैं उसी पिच पे खड़ा हूं जिस पिच पे आज ये मुकाबला खेला जाएगा, और मेरे साथ एक खास शख्सियत हैं और उनके बारे में कहते हैं कि अपना ज़माना हम खुद बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। वसीम भाई बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ गुफ्तगू हुई है आपकी पिच के साथ? हाँ बिल्कुल हुई है। ये पिच बॉलर्स के लिए अच्छी है। नया बॉल इस पे सीम भी करेगा, स्विम भी करेगा, बैक ऑफ अ लेंथ भी आएगा। बट अगर आप पिच के पास जाएं, देखिए इसमें घास, ये जो बात कर रहा हूँ ना, घास बहुत ज़्यादा, अगर आप इसका क्लोजअप दिखाएंगे आई कैन एक्सप्लेन कि ये घास जो जिसे हम गट्ठों वाली घास कहते हैं ना, ये सारी और अच्छी तरह रोल हुई है, रॉक हार्ड है और ठीक ठाक घास है। इसका मतलब है बॉल पड़ के भी हिलेगा। विवेक, ऐसी पिच के ऊपर ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज वसीम भाई, उसका क्या प्लान रहना चाहिए? देखिए उसने पावर प्ले में तक 8 विकेटें हासिल की हैं ट्रेंट बोल्ट ने, और वही बैक ऑफ अ लेंथ, वो 6 से जो हम 8 इंच की लेंथ की बात करते हैं, ये उससे थोड़ा ऊपर आए हैं। ये 6 से 4 लेंथ में आते हैं, और ये पिच वही है कि आपने 4 मीटर से 6 मीटर के अंदर लेंथ मानी जो ट्रेंट बोल्ट ने की है। इसीलिए उसने पहले पावर प्ले में 8 विकेटें हासिल की हैं। इसीलिए माय एमिरेट्स टॉप ऑफ द टेबल है बिकॉज ऑफ हिज विकेट्स। तो चलिए पिच मैप पे आपने नज़र डाली होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि अभी वसीम भाई जो बात कर रहे थे और जो ताकत रही है ट्रेंट बोल्ट की, लेकिन इस मैच में एक खास बात क्या रहेगी कि ये मैच जो है वो खेला यहाँ जाएगा लेकिन जीता यहाँ जाएगा। और जाने से पहले सिर्फ यही कहूँगा मैं कि दोनों टीमें सिर्फ यही कहेंगी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखना ये कि अंत में कौन सी टीम बोलती है ऑल इज वेल, लेकिन फजल हक फरूकी है नहीं, यानी ट्रेंट बोल्ट के ऊपर बहुत एक मिनट थोड़ा आपको यार मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा विवेक राजदान के साथ कोई खास थे, ये मिर्जा गालिब के साथ कोई खास थे। विवेक राजदान थोड़ी थे वहाँ, तो मिर्जा गालिब थे वसीम भाई के साथ। वो सुन रहे हैं हमें अभी। लेकिन आज जैसे मैंने बोला फजल फरूकी है नहीं, ट्रेंट बोल्ट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अर्ली मैचअप भी बनेगा। जी देखिए ट्रेंट बोल्ट भी, जैसे हम कायरन पोलार्ड के बारे में बात कर रहे थे उनके अनुभव के बारे में, ट्रेंट बोल्ट के पास भी बहुत ही अनुभव है। ये भी एक ऐसे बॉलर है जो ज़्यादातर अपने पहले ओवर पहले स्पेल में विकेट चटकाते हैं, पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं। देखिए फजल हक फरूकी ने जी हाँ 17 विकेट निकाले हैं इस टूर्नामेंट में अब तक, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने भी जो परफॉर्मेंस किया है वो कुछ कम नहीं है। यानी उन्होंने भी उनका अनुभव इस्तेमाल किया है, स्किल सेट इस्तेमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से खेलते आ रहे हैं उस तरह से खेलते ही जाएंगे। जी देखिए बहुत कुछ है डिस्कस करने को, क्योंकि ये मैच ही कुछ ऐसा है, क्योंकि एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियंस, दूसरी तरफ है माय एमिरेट्स जो कि पॉइंट्स टेबल के टॉप पर हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन जल्द वापस आएगा क्योंकि शिमरॉन हेटपायर पे अभी बातें बाकी। वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। आपको बता दें कि माय एमिरेट्स ने यहाँ पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चयन किया है, यानी आपको सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे गल्फ जायंट्स। और एक बड़ी खबर है डीबी वर्ल्ड IL-T20, कायरन पोलार्ड आ चुके हैं इस डीबी वर्ल्ड IL-T20 के सीजन में। गल्फ जायंट्स जो हैं जो कि अनचेंज्ड हैं, यानी ये टीम कैसी नजर आ रही है यहाँ पे? पहले 2 मुकाबले जीत के आई। जेमी स्मिथ को रन बनाना पड़ेगा क्योंकि जेम्स विंस के साथ साथ मध्य क्रम में क्रिस लिन का इतना अच्छी तरीके से बल्ला नहीं चल रहा। जॉर्डन कॉक्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है फिर हेटमायर के ऊपर, क्योंकि टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। जेमी स्मिथ जो है अब 8 इनिंग्स हो गई रिदमा,
मुश्किल से 80 रन नहीं है पूरे टूर्नामेंट में दाद देनी होगी। जिस तरीके से कप्तान उनके काबिलियत में भरोसा दिखा रहे हैं तो उनको ऊपर से फायर करेंगे तब हेटमायर के लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी। मध्यक्रम के पास एक वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो जाके उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, पिछला मैच जो यहाँ पे हुआ था 126 रन ही बना पाया था इनकी बल्लेबाज। यहाँ पे चेंजेस काफ़ी है माय एमिरेट्स के स्क्वाड में, किस तरीके के चेंजेस है ये रोहन? जी देखिए 4 चेंजेस हो चुके हैं। एक तो कायरन पोलार्ड आ गए, उनका अनुभव काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी ओपनिंग पेयर है कुशल परेरा और मोहम्मद वसीम, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी है अब तक इस टूर्नामेंट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो इस मैच में भी वो उस तरह का शुरुआत है। और फिर ट्रेंट बोल्ट नीचे, ट्रेंट बोल्ट जिस तरह से विकेट चिटकाते हैं पहले पावर प्ले में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो अब तक खेलते आए हैं उन पे काफ़ी निर्भर करेगा। जी, कुशल परेरा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं डीबी वर्ल्ड IL-T20 के इस सीजन के। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिमरॉन हेटमायर को देखेंगे, जो रिसर्जेंस हुआ है गल्फ जायंट्स का इस सीजन, ये क्या शिमरॉन हेटमायर के फॉर्म में आने से ही हुआ है? क्या इसी को देंगे हम? यही कारण है? देखिए, जिम्मेदारी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने कंधों पे ली है और फर्क ये है जैसे ही दिक्कतें पैदा हो रही थी शुरुआत के 5 मैचेस में 45 रन, उसके बाद 3 मैच में 127। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इनको गेंदें ज़्यादा खेलने का अवसर मिल रहा है। जब टॉप ऑर्डर रन नहीं बना पा रहा तो अब इनको कुछ समय मिल रहा है क्रीज पे। पिछले मुकाबले में भी देखिए 126 में से 34 रन का वो योगदान था। अब वो जिम्मेदारी नजर आ रही है और जितना अनुभव इनके पास भी है, 1-2 इनिंग खेलते हैं ना, वही काफ़ी होता है वो वापस रिदम में पकड़ने के लिए। अब रिदम पकड़ ली है इन्होंने। जी, और जिस तरीके के फॉर्म में है, आपको बता दूं कि गेंदबाजों को इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है। विकेट चटकाना चाहते हैं लेकिन वो जो है आके आतिशी बल्लेबाजी करते हैं। वैसे हमने इनको दिए कुछ ऑप्शंस, आपको दिखाएं क्या क्या चूज किया इन्होंने। Weights or treadmill? Treadmill. Instagram or Snapchat? Instagram. Gold or silver? Gold. Tendulkar or Lara? Lara. Spicy or mild? Spicy. Dogs or cats? Cats. Tea or coffee? Tea. Beach or pool? Pool. Money or love? Love. Finally, score a century or take a fifer? Take a fifer. Scored a century already. मनी और लव? लव वो तो फंस गए थे, बड़ा सोचना पड़ रहा था। ओके, यही सोच रहा हूँ कि इतना देर उनको सोचना पड़ा। अच्छा चलिए, माय एमिरेट्स या गल्फ जायंट्स? मैं जाऊंगा माय एमिरेट्स के साथ। क्यों? माय एमिरेट्स क्यों? मुंबई देखिए जी देखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट टीम है। जो प्लेयर वापस इनके जो प्लेयर आए, कायरन पोलार्ड, वो भी दिखाना चाहेंगे क्या किस तरह का जलवा है उनका। तो माय एमिरेट्स। चलिए देखते हैं कि आज जीतता कौन है, पिछले सीजन के ताज के हकदार या इस सीजन के ताज के सबसे बड़े दावेदार। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइव एक्शन का वक्त हो गया है, चलते हैं सीधा गेम की ओर।